You all are connected right now. Today is 23rd September, sorry, July 2020. Now we are going to start with the topic. कुछ किसी का क्वेश्चन है देख लेता हूँ. वेरी गुड, कोई क्वेश्चन नहीं, सबका अटेंडेंस है. Now we are going to start with the topic. First, as I have already discussed with you, that today we are going to start with the topic that is for loop. What actually the for loop is? First point, हम basic notes इस पे दे रहा हूँ यहाँ पे. First point, it is a type of loop used in Python language second point, it is also called entry loop because all the time it first check the expression and then execute the statement. Okay. Third point, to work with the for loop, we have to identify uh, a keyword that is called in. In keyword is general in loop, for loop. To work with the expression, there is a function that is called range function. Range function identify expression or execution of the for loop. ये 4 पॉइंट आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लो. डू इट फास्ट. और आफ्टर डूइंग इट रेज योर हैंड. Do it fast, boys and girls. Either write in the copy or take a snapshot of it and raise your hand. Do it fast. I receive 11 messages from your side. Solve yesterday question. What was the question? मुझे याद नहीं है. याद आया, मैंने एल्गोरिदम दिया था आप लोगों को बनाने के लिए, तो वो आफ्टर द क्लास बताता हूँ मैं. लास्ट 15 मिनट में एडिशनल वर्क. ठीक है. अभी कोर्स का वर्क, पहला 40 मिनट कोर्स का वर्क, बाकी का 10-15 मिनट एडिशनल टास्क. ओके चलो. तो नॉर्मली whenever we are working with for loop in Python, we have to follow these 4 points. First point, what actually the for is. For is a looping statement in the Python language. Second one, it is also called entry loop because the expression or the body of the loop is executed after the expression is tested. Next one, in this particular for loop, we identify in as a keyword that is available in the Python to identify the expression inside the given parameter. Here parameter is managed with the help of the function that is called range function, or you can also use other data structures that is list, tuple, dictionary and sets. These are also used inside the range, or we can say that in for loop. लेकिन मैंने अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी आपसे डिस्कशन नहीं किया है. लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दैट विल बी डिस्कस आफ्टर द लूपिंग चैप्टर. ठीक है. तो नाउ व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद दीज लूप, then you have to identify these 4 or 5 points that is essential to work with the Python for loop. Next, what actually the syntax of it?
Here, whenever we are working with for loop, then we have to identify the keyword for here. Now, variable equal to value, या फिर you have to identify variable is equal to initial value, then variable in is a keyword that is required to make looping inside the for loop. Next, range, start and end. So it is very essential whenever you are working with for loop. ठीक है, काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीका हमारा ये है. Now, as we know that there is a rule inside the Python, whenever we use control statement, then you must have to use colon symbol at the end. ठीक है, always you have to point it or remind it. Next, body of the loop. That means the part of the loop is going to be executed inside it or here. Next, if you are having any additional content related to the operation with the for loop, then you can use here expression or variable update. जो भी आपको रिक्वायर्ड यहाँ लिखता है, आप यहाँ पे इसको दे सकते हो. तो this is the one of the example of for loop. Now I am going to give an example here. Here I am going to display number from 1 to 100 with all number from 1 to 100 simply. ज़्यादा आसान है. Number is equal to 0 या फिर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग. For number in, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हो एक्सप्रेशन. मैं यहाँ रेंज दे देता हूँ, तो मुझे यहाँ नंबर देने की जरूरत भी नहीं पड़ती. ऊपर में जो हमने दिया हुआ है इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं रेंज मेथड को यूज करता हूँ. 1 to 101. Now this is called end of the statement, and here you have to print it. Print number. But there is a problem. Whenever you are using the statement like in this way, you will find every time statement. That means जब भी ये लूप हमारा एग्जीक्यूट करेगा तो हर एक बार हमें ये वैल्यू पुट करके दिखाएगा ऑन द स्क्रीन. लेकिन अगर आपको सेम टर्म में अगर इसको एट द एंड कराना है, लास्ट वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है, दैट मींस आई एम गोइंग टू प्रिंट 100, देन यू हैव टू यूज लाइक दिस वे. बट इफ यू वांटेड टू यूज और डिस्प्ले each and every loop, then you should use tab indent. Indent is required here. ठीक है. Now boys and girls, take a snapshot of it and raise your hand. Do it fast. कल मैंने जो भी आपको बताया था लास्ट क्लास में, वो सारे के सारे कंटेंट थे टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द लूप इज. लेकिन यहाँ जो आप पढ़ोगे दैट इज द इसेंशियल पार्ट. हमने आपको पहले बताया है कि आप लूपिंग को या किसी भी स्टेटमेंट को बहुत तरीके से लिख सकते हो, बट हर एक चीज की स्टैंडर्ड है, आपको स्टैंडर्ड के साथ चलना पड़ेगा. ठीक है. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द स्टैंडर्ड हियर, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी कैन मैनिपुलेट हियर. ठीक है. ओके, थोड़ा मैसेज चेक कर लूं आप लोगों का. ओके ओके, मंकेत का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एग्जांपल अगेन. फर्स्ट थिंग मंकेत, ये वीडियो जो आपका रिकॉर्ड हो रही है ना, ये आपके ग्रुप में चला जाएगा, आप दोबारा देख लेना उसको. ठीक है. बिकॉज whenever I repeat the same statement, I actually kill the time, and time is important here. So here the program is to display number from 1 to 100, and in this way we actually going to display number from 1 to 100. And as I already discussed, as 100th is the last packet, so we have to extend one. एक ज्यादा करना हमें. इससे बेनिफिट क्या होगा कि वो लास्ट पैकेट तक एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. अदरवाइज यू कैन सेट सम एक्सप्रेशंस हियर.
So now I'm going to execute it on the copy. Sorry, on the uh, programming window, or ideally. Here is the ideally. Now I am going to write a program for number in range 1 to 101, ठीक है, colon and then print. मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट किया था कि अगर आप इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हो तो ये हमारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अभी देखो नेक्स्ट अगर एंटर की प्रेस करते हैं तो वेट करता है, दैट मीन्स यहाँ पे भी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं अभी फ्री है, लेकिन जैसे एक सिंगल स्टेप देंगे हम लोग तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा लाइक दिस। देखो 1 to 100 तक प्रिंट किया। सेम प्रोग्राम में अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रोग्राम को कंट्रोल करूं, ओके, हियर I wanted to display all the number at the end, whatever the number that is the end point is going to display, यानी पहले लूप एग्जीक्यूट करेगा, सॉरी एक पॉइंट छूट गया। सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, मैं इसको यहाँ स्किप मोड में जाता हूँ, वहाँ दिक्कत होती है। For number in range 1 to 101 colon, आप यहाँ पे प्रिंट कर दो, ठीक है, और लेकिन यहाँ कोई स्टेटमेंट मत डालो। लास्ट आते प्रिंट। अब ऐसा क्यों किया वो बताता हूँ आपको, जस्ट सेव इट, टेस्ट 11, सेव इट, ऑलरेडी है, 12 कर दो। नाउ रन इट। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इतना ब्लैंक स्पेस प्रिंट कर रहा है, ओके, तो ये स्पेस हमें नहीं चाहिए, मुझे लास्ट वैल्यू तो मिल रहा है यहाँ से, लेकिन ये लास्ट हमारा प्रिंटिंग जो हमारा एंड में कर रहा है। मैं अगर इसको रिमूव कर दूं और इसको रन करूं, तो यहाँ पे कह रहा है कि एन एक्सपेक्टेड एन इंडेंट, तो ये लास्ट में इंडेंट हमें आइडेंटिफाई कराने के लिए कह रहा है। यहाँ कर दो, देन सेव इट एंड रन इट। अभी भी एरर आनी चाहिए, ये अभी भी ऐसे ही प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे सेंस में हमारे पास क्या है कि इस पार्टिकुलर लूप को मुझे पास करना पड़ेगा। पास बेसिकली कीवर्ड होता है पाइथन में जिसके थ्रू आप एक इंटायर बंच ऑफ स्टेटमेंट को जस्ट पास कर सकते हो। दैट मीन्स कि स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं दिखेगा, ठीक है। रन किया, देखो लास्ट में वैल्यू हमारे पास आ गया। तो ये बेसिकली पास के थ्रू हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करें, नॉर्मली हमारा लूप चल रहा है 1 to 100 और सेम स्टेटमेंट में अगर हमारा वैल्यू एग्जीक्यूट कर रहा है तो नो डाउट वो प्रिंट करेगा या कोई काम करेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, हमने पढ़ा है कि आफ्टर द फॉर एक्सप्रेशन चेक बॉडी ऑफ द लूप इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, बट आई डोंट वांट टू एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप, आई जस्ट वांट द लास्ट वैल्यू। तो वैसे सेंस में आपको एक वैल्यू पास कराने पड़ेंगे। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू पास द स्टेटमेंट, यानी कि एज फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक ग्रुप में खड़ा हूँ, मेरे पास जानवी है, मंकेत है, संतोष है। अब मैं मान लो कि मैं कोई वैल्यू पास करना चाहता हूँ मंकेत को, तो बीच में हमारे पास कौन है, जानवी आ रहे हैं। तो उस बेसिस में क्या करना होगा, हमें जानवी को कोई कंटेंट पास करना होगा और जानवी फिर मंकेत को देंगे। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है ये मल्टी स्टेटमेंट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जानवी हमारा हिडन है, वो कभी दिखेगी नहीं, ठीक है। दैट सेम प्रोसेस में यहाँ पास भी यही कर रहा है। पास क्या कर रहा है, लूप को एग्जीक्यूट कर रहा है लेकिन लास्ट पैकेट को ही आइडेंटिफाई कर रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एनो। क्लियर है, मैं इसको रन करता हूँ, फिर से चेक कर लो, देखो आया 100।
तो ये हमारा लास्ट वैल्यू चेंज कर रहा है। सेम प्रोसेस में अब अगर मान लो एज फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस लगाने हैं, ठीक है। फर्स्ट राइट अ क्वेश्चन, एक सेकंड मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बेहतर होगा। Write a program in Python to enter to print write a program in Python to print number from odd number from 1 to 100, ठीक है। अभी छोटा सा प्रोग्राम का एक्सरसाइज देखो आप। लास्ट आपने प्रोग्राम पढ़ा था क्या? आपने लास्ट प्रोग्राम पढ़ा था इफ एल्स और एलएफ जो भी है। मैं उसके मदद से कैसे यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले दिया मैंने एग्जांपल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लो 1 कर दिया स्टार्टिंग के लिए, या फिर इसको छोड़ दो आप, ऐसे ही रहने दो, वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, नथिंग रहेगा, डायरेक्टली लूप चला दो। फॉर नंबर इन रेंज 1 to 101, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन चेक करना है कि इफ नंबर परसेंट 2 इक्वल टू 0, यानी हर स्टेप में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और चेक करेगा कि इज द करेंट नंबर इज इवन और नॉट। मुझे और करना है तो यहाँ 1 करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आई हैव टू प्रिंट द वैल्यू, प्रिंट नंबर, एल्स मुझे यहाँ से एल्स देनी पड़ेगी, एल्स प्रिंट नथिंग, खाली कर दो प्रिंट, कुछ नहीं करो प्रिंट, ब्लैंक छोड़ दो आप, ठीक है। तो ऐसे सेंस में हमारे पास दोनों आउटपुट आएंगे। यहाँ पे रन करके देखता हूँ, सॉरी यहाँ आगे एकदम इसके सामने होनी चाहिए, देन रन इट। देखो ये सारे नंबर हैं जो हमारे ऑड नंबर हैं 1 to 100 के बीच में डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन यहाँ एक सिंगल स्पेस भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? राइट इन द चैट बॉक्स, डू इट फास्ट। इफ स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप मुझे बताओगे कि ये स्पेस क्यों आ रहा है बीच में, एक एक सिंगल लाइन ऑफ स्पेस। राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, डू इट फास्ट बॉयज एंड गर्ल्स। व्हाई इट हैपन कि यहाँ पे नंबर भी प्रिंट कर रहा है और सिंगल स्पेस भी। जस्ट टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट बॉयज एंड गर्ल्स एंड रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके मैं ऊपर से पढ़ता हूँ। वेरी गुड आयुष, क्योंकि कंडीशन फॉर इवन ए नंबर इज ब्लैंक स्पेस, ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ एल्स स्टेटमेंट। वेरी गुड विकास, मैं फाइनल बताऊंगा किसका परफेक्ट आंसर है। बिकॉज ऑफ एल्स स्टेटमेंट, वेरी गुड सृजन, बिकॉज इवन नंबर होने पे प्रिंट नथिंग है, ये भी सही है। यू ऑल आर राइट बट द एक्यूरेट। नेक्स्ट कौन है? शिवांशु सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है मुझे, तो ये प्रॉब्लम है आपके पास शिवांशु, आपके इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई होगी। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है कि whenever you use if statement then there is no need to use else statement, ये required नहीं है, but if you wanted to use it then you can। तो वैसे सेंस में हम इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं कमेंट में बदल दे रहा हूँ, तो ये इल्स के कारण ही हमारा ब्लैंक स्पेस प्रिंट हो रहा है। आप लोगों ने जितने लोगों ने बोला वो सही बोला, जिन लोगों ने लॉजिक बताया वो भी सही बताया, बिकॉज देयर इज ए चेकिंग ऑफ ऑड नंबर ओनली नॉट द इवन, दैट्स व्हाई दिस प्रोग्राम रिप्रेजेंट और प्रिंट ब्लैंक स्पेस। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ फिर से,
देखो नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं आया। तो स्टार्टिंग में आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी कि कैसे प्रोग्राम कोड को हम लोग इम्प्लीमेंट करें। नो डाउट इसमें हमेशा आपको गलती होगी, जितना ज्यादा गलती करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, लेकिन याद रखना है नेवर रिपीट द मिस्टेक। गलती एक बार होनी चाहिए, जरूरी है टू अंडरस्टैंड समथिंग, लेकिन बार बार करोगे तो वो गलत है। ठीक है, हाँ रिसर्च पर्पस के लिए कर सकते हो, यू कैन अप्लाई ईच एंड एवरीथिंग हियर, जो मन में आए आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दैट इज अबाउट ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? चलो ओके, नाउ बॉयज एंड गर्ल्स यू हैव अ प्रोग्राम टू राइट। दिखाया तो विजय। नाउ इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। Here is a program for you. Question है write a program in Python to print multiplication table of 5 using for. Look, do it fast. अब बोलोगे सर 11 में आ गए, अभी तक मुझे आप मल्टीप्लिकेशन का टेबल लिखवाना है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग सीखना है तो बेसिक से सीखो, बहुत कुछ मिलेंगे इसमें सीखने को, नया चीज करने को। Boys and girls, if you have taken the snapshot of it, then raise your hand or write in your copy too. Now you have to write the program. It can be wrong, again chalega, but you have to write on your copy and everyone need to show it. Do it fast. Now everyone need to switch on your camera and show the current status of your work. Do it fast. Do it fast, boys and girls. मैं आप सभी का क्वेरी लूंगा at the end. But now you have to write your answer on your copy and you have to show it. Do it fast. Use back camera. Very good. And fix it in portrait mode, not landscape, not issue premi. पोर्ट्रेट मोड में पकड़ो कैमरा को, ना कि लैंडस्केप में, ताकि दिखे मुझे। वेरी गुड। एंड फिक्स इट। विजय कुमार, जानवी, मंकेत, स्वाति, श्रेया, राहुल, show your back camera whatever you are going to write on your copy. गलत सही बाद में देखेंगे हम लोग। मैं हमेशा कहता हूं पहला मिस्टेक करो, गलती करो, गलती करना जरूरी है, जानबूझ के नहीं। To understand the error. Manket, show me your copy, not your face. Use back camera. और कॉपी को आप कैमरा ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखोगे, ना कि लैंडस्केप। वेरी गुड विजय। अमन, विकास, शलोनी, निखिल राज, अंजलि, डू इट फास्ट। स्वाति कुमारी, सोनू, संतोष, सिद्धार्था, सृजन, तुषार, एवरीवन हैव टू डू इट। डू इट फास्ट। मैं ऑलवेज कहता हूं गलती होगी, होने दो, एक बार होगी, दो बार होगी, तीसरी बार के बाद नहीं होगी। 3 बार गलती करने का राइट है आपके पास, ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं है। डू इट फास्ट। अर्चना, नितिन कहाँ गया? नितिन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मैं भी क्लास ले रहा हूँ, आपसे 1 घंटे बाद बात करूंगा। ओके, डू इट फास्ट। सौम्या, सृजन, अभी तक नहीं दिखाया आपने।
चलो ओके, वन बाय वन मैं पिन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उसको क्या लिखा आपने। वेरी गुड। विजय जरा फिक्स कर लो कैमरा, हिल रहा है तुम्हारा कैमरा काफी। वेरी गुड। कॉपी मत दिखाओ, लिखते भी जाओ, मैं देख रहा हूँ क्या लिख रहे हो आप। डू इट फास्ट। आपको टेबल लिखनी है कुमार सौरभ। टेबल 5 का टेबल होता है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, वो लिखना है आपको। प्रोग्राम गलत हो रहा है आपका। ये क्या लिखा है मंकेत, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन हियर, शो मी द कैमरा। वेरी गुड। वेरिएबल कहाँ है इसका, मैंने जब जस्ट प्रोग्राम लिख के बताया उस तरीके से आप लिखो। गुड, डू इट फास्ट। इसको फिर से करो आप। निधि, 1 to 10, इफ नंबर 8, इफ क्यों आया, why you are using if here, is if is a part of this programming logic। टेबल को प्रिंट करने के लिए if लगाने की क्या जरूरत है। निखिल, आपको पिन कर रहा हूं। निधि करेक्ट करो प्रोग्राम को। नंबर इन रेंज 5 to 50, आगे भी लिखो। नो नीड ऑफ इफ हियर, आपको 5 का टेबल प्रिंट करनी है। ओके, मैं इस प्रोग्राम को कम से कम 15 तरीके से बना सकता हूँ। सिंपल मैथमेटिक्स लॉजिक लगाओ, मैथमेटिकल लॉजिक। ये कौन है, प्रियांशु। ओके, या नंबर क्या है, प्रिंट नंबर। अच्छा, आप ऐसे प्रिंट कर रहे हो, फॉर नंबर 5 to 51। ओके, तो इससे ये इसका कोई लॉजिक तो नहीं बन रहा प्रियांशु। ऑड इवन चेक कर रहे हो आप, प्रोग्राम काफी सिंपल है। यू नीड टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 5, टेबल ऑफ 5, 1 of 11, 1, वेयर इज द नम। ऋतिक कुमार, नम वेरिएबल कहाँ इस्तेमाल किया आपने। नम वेरिएबल तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। मोबाइल को लैंडस्केप नहीं पोर्ट्रेट में पकड़ो। स्वाति, स्वाति आपका बैंडविड्थ काफी लो है इंटरनेट का। सेम प्रोसेस। नितिन नंदन, कितना अच्छा लग रहा है आप लोग लिख रहे हो प्रोग्राम। नितिन होल्ड करना जरा सा कैमरा, राइट साइड। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया नितिन। देखो सब करो, गूगल मत करो, ऑलवेज कहता हूँ, सभी को कहता हूँ, अगर सीखना है तो गूगल मत करो। यहाँ कौन है, ये सलोनी कुमारी, आपकी स्टेटमेंट थोड़ी उल्टी हो गई है। a इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई नंबर कर रहे हो आप, तो व्हाट एक्चुअली द नंबर हियर फर्स्ट। और ये जो स्टेटमेंट आप पास कर रहे हो ना, a इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई नंबर, ये लुक का पार्ट होना चाहिए, इनिशियलाइजेशन का पार्ट नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट श्रेयांशु को चेक कर लो मैं। वेरी गुड, इन रेंज इतना इतना। नम, वेयर इज द नम, कौन है ये, श्रेयांशु सुमन। करेक्ट द प्रोग्राम, आप सही जा रहे हो लेकिन थोड़ा गलत, थोड़ा अच्छा ऊपर लिखा है आपने। वेरी गुड, तो नम इक्वल टू 12 आपने किया है, 5 की टेबल बनानी है ना। करेक्ट करो। कुमार सौरभ, सृजन, राहुल, श्रेया, अंजनी, आयुष, मिस्टर आयुष, जल्दी से दिखाओ मुझे, शो करो, डू इट फास्ट। सिद्धार्थ श्रीवास्तव,
आपने अभी तक नहीं करा है? छवि भदानी, प्रेरणा भारती, ये आदित्य कहाँ रह गया? डू इट फास्ट। अर्चना भी नहीं कर रही है अभी तक, जल्दी करो। इतना टाइम लगा हुआ एक सिंगल क्वेश्चन में, तब तो हो गया हमारा। डू इट फास्ट। सलोनी हो गया आपका, इशू भी कर लिया है। मंकित, मंकित ने अभी तक करेक्ट नहीं करके शो करा लेकिन। प्रेरणा भारती, मैं बोलूंगा तब दिखाओगे आप लोग कॉपी अपनी, आपको अपने मन से करनी चाहिए ये। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक गड़बड़ कर दिया, इफ क्यों लगाया आपने? जस्ट अ सेकेंड, आयुष चेक कर रहा हूं मैं। और रेंज इतना, थोड़ा सा बैक करोगे आप? कैमरा से थोड़ा सा दूर कर लो आयुष। आयुष थोड़ा सा बैक करो। वेरी गुड। प्रिंट एक्स, चलो कोई नहीं। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों का रेस्पॉन्स देख लिया है। अब मैं इसको आपको रियल टाइम में करके दिखाता हूँ। विकास, विकास का देख लेता हूँ वीडियो कैसा बनाना है। एक तो फोटो दिखा रहा हूँ। वेरी गुड, चलो। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट। कैसे करेंगे इस चीज को? बहुत ही आसान तरीका है। मुझे टेबल कहाँ से कहाँ तक बनानी है? फर्स्ट राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू print multiplication of multiplication table of 5। फर्स्ट थिंग आपको आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ पे लूप कितनी बार चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला मैं देता हूँ MUL, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे 5 दे दो। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया 5 से। एंड जो करंट पोजीशन हमारा लूप का, मैं उसको A कह देता हूँ। A इज अ करंट पोजीशन ऑफ द लूप। और कोई भी टेबल आपने पढ़ा है कि वो 10 टाइम्स ही चलता है, तो सबसे आसान तरीका है प्रिंट करो MUL यानी मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय A एंड देन प्रिंट इट। ठीक है, हियर इज द आउटपुट। सबसे आसान तरीका आ गया स्क्रीन पे। कितना आसान तरीका है, सारा का सारा आउटपुट एक बार आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास? इसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे तरीके, आप ढूंढो कहाँ से होगा पहले, अभी आपको मैं बताऊंगा नहीं तो फिर आसानी हो जाता है, भूल जाओगे। आपको इसके नंबर ऑफ मेथड बनाओ अपने माइंड से, नहीं बनेगा देन आई विल शो यू हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट। मैं इस प्रोग्राम को कम से कम 15 तरीके से बना सकता हूँ, सिंपल टेबल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रही है कि ये लास्ट पैकेट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, 45 तक ही जा रहा है। तो वेरी सिंपल, इसको आपको 11 टाइम तक चलानी है। ठीक है, सेव इट एंड रन इट। 5 का टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? जल्दी से अपने प्रोग्राम को करेक्ट करो और रेज हैंड करो। डू इट फास्ट। वेरी गुड। तो आज आपने सीखा है कि फॉर लूप को कैसे इस्तेमाल करते हैं यूजिंग इन एंड रेंज। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है कि हर एक स्टेटमेंट को यूज करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। स्टैंडर्ड हमें सीखना है और बाकी एडवांस लेवल टाइम टू टाइम आता रहेगा, मैं खुद आपको ले जाऊंगा वहां तक। चलो फिर चेक कर लेता हूँ। execute without specifying multiply is equal to 5। Nitin, sir, but I execute it without specifying multiply 5। मतलब नहीं समझ में आया मुझे, अपना कॉपी दिखाओ मुझे आप। नितिन, और अनम्यूट करो। डू इट फास्ट। नितिन नंदन। Yes, sir. show me your copy।
क्या आपने बनाया जरा देखो मैं भी। ए में आपने मल्टीप्लाई किया 5 को। चलो ये दूसरा वे है जी, आप लोग भी देख लो। बहुत ही बढ़िया नितिन। ओके, so now we are going to in the first session, so you have to reconnect. Okay, तो जस्ट रिकनेक्ट कर लो आप लोग। मैं चैट को पहले सेव कर लेता हूँ, देन डू इट, रिकनेक्ट।